یسوع مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ممکن کیا کہ آج ہم خدا کی میز پر آ سکے، کیونکہ آج ہم شے روحانی منانے والے ہیں، یعنی کہ وہ کھانا جو آپ رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب عید فصح کو شام میں مناتے تھے، اور اسے اس لیے شائے ربانی کہتے ہیں، یعنی کہ شائے کا مطلب جو ہے وہ شام ہے، اور ربانی کا مطلب رب ہے۔ اور وہ کھانا جو شام میں رب نے کھایا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے کھایا۔ آج ہم فصح کے بارے میں خدا کے کلام مقدس میں سیکھیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ موقع باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ پہلی ٹوکری میں سونے کے سیب کے مانند۔ آمین۔ اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ اس میسج کو سیکھیے گا۔ اعمال کی کتاب میرے ساتھ نکالے 2 باب اور 41 آیت مقدسہ۔ اعمال کی کتاب 2 باب 41 آیت مقدسہ میں سے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ جب کرسچینٹی کا آغاز ہوا، جب مسیحیت کا آغاز ہوا، اور ابتدائی کلیسیا کے اندر 4 ایسے کون سے ایلیمنٹس، یعنی کہ ایسے کام تھے جو وہ کبھی نہیں بھولتے تھے، اور یہ ہمیں اعمال کی کتاب میں سے ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 42 آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا میں مشغول رہے۔ کلام خدا کا پڑھنا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بائبل مقدس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے پال کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، ان کے اندر 4 کاموں کا بڑا اہم رول تھا۔ پہلا کام جو ریسیونگ ٹیچنگ ہے، جو رسولوں سے تعلیم کو حاصل کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس رسول تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ رسولوں کا لکھا گیا انجیلی کلام، جو اناجیل ہیں اور جو خطوط ہیں۔ آج ہمارے درمیان یہ انجیل، خدا کا کلام جو رسولوں کی معرفت اس سے لکھوایا، وہ موجود ہے، تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں چلیں۔ جس طرح ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ رسولوں کی تعلیم پا کر، رسولوں کی تعلیم پر ان کی رہنمائی میں چلتی، آج کے دور میں ہمارے پاس رسول موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس رسولوں کا لکھا ہوا کلام، جو خدا کے روح القدس کی تحریر سے انہوں نے لکھا۔ اور رسول کہتا ہے پہلے کرنتس اس کے 11ویں باب اس کی 23 آیت مقدسہ میں کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، اور میں نے بھی تجھے پہنچا دی کہ جس رات یسوع پکڑوایا گیا، اس نے روٹی لی، توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے شکر کر کے، اسی طرح رسول کہتا ہے کہ پھر پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ میرے خون کا نیا عہد ہے، جو بتھیروں کے لیے بہایا جائے گا۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھے کہ آج ہمارے پاس یہ کتاب جو کلام مقدس، جس میں رسولوں نے روح القدس کی تحریر سے لکھا، یہ ذریعہ ہے تعلیم پانے اور حاصل کرنے کا۔ پھر بائبل مقدس میں جو دوسرا کام ان کی زندگی میں تھا، وہ رفاقت رکھنا، فیلوشپ رہنا، ایمانداروں کی فیلوشپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا کام جو آج ہم کرنے والے ہیں، اور وہ ہے روٹی توڑنا۔ وہ جب بھی جمع ہوتے وہ روٹی توڑتے، اور اس کے پیچھے بڑی ایک ہسٹوریکل ہسٹری ہے۔ یہ
बड़ा ही अहम काम था उनकी जिंदगी में। वो इंतजार करते थे कि कब हम एक जगह पर इकट्ठे हों और रोटी तोड़ें, क्योंकि ये हुक्म उन्हें खुदावंद यीशु ने दिया था कि मेरी यादगारी में यही किया करो। इसलिए वो इंतजार में रहते इकट्ठे होने के और रोटी तोड़ने। और चौथा काम जो उनकी जिंदगी में था, वो दुआ करने में मशगूल है। इसे मुकद्दस रस्म भी कहते हैं और बाद चर्च इसे बहुत सारे नाम भी देते हैं। इसे इब्तदाई कलीसिया जब करती थी तो वो किसी शख्स ने इसका आगाज नहीं किया। ये जो रस्म है इसका आगाज कोई शख्स करने वाला नहीं, बल्कि इसका आगाज खुद खुदावंद करने वाला है, क्योंकि रसूल इस बात को वाज़िह तौर पर बयान करता है कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया उसने इसका शायरबानी का आगाज जो है उसने खुद किया। उसने रोटी ली और तोड़ी। ये रोटी तोड़ने का आगाज जो है किसी इंसान की तख्लीकात नहीं, बल्कि इसका बिगनिंग करने वाला, इसका आगाज करने वाला मेरा और आपका खुदावंद मनजीद यीशु अल मसीह है। हालेलुया। और उसने रोटी ली और तोड़ी। इसे मुकद्दस रस्म कहते हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसको पाक शराकत भी कहते हैं, यानी कि पाक लोगों का एक जगह पर शरीक होना, एक जगह पर इकट्ठा होना। और इसे बड़े सारे और भी नाम दिए गए। बहुत सारे चर्च इसे यूक्रिस्ट भी कहते हैं। यूक्रिस्ट का मतलब शुक्रगुजारी है, और वो इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जब वो इस रस्म को करते हैं, इसे यूक्रिस्ट को लेते हैं, शायरबानी को, तो वो इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरे गुनाहों के कारण, मेरी तकलीफों के कारण, मेरी मुसीबतों जो मैंने सहनी थी उसको यीशु ने सहा, और उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए फिदिया देकर हमें एक आज़ाद आना जिंदगी बख्शकर उसने हमें बिल्कुल फ्रीडम, आज़ादी दे दी, ताकि हम उसके खून के वसीला से पाक हो। इसलिए इसे यूक्रिस्ट कहते हैं कि जब वो इकट्ठे होते हैं तो इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमारी खातिर सलीब पर दुख सहा और अपनी जान देकर हमारी जिंदगी को बचाया। आमीन। और फिर इसको ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। इस बहुत सारे चर्च इसे ऑर्डिनेंस भी कहते हैं, और इसका भी एक मतलब है। ऑर्डिनेंस का मतलब ऑर्डेन से है, यानी कि मखसूस कर देना, अलग कर देना, एक चीज को खास तौर पर किसी नेक काम के लिए अलग कर देना। आमीन। हम रोजाना ये रोटी पकती है, खाते हैं, लेकिन आज ये मखसूस हो चुकी है, आज ये ऑर्डेन हो चुकी है, क्योंकि आज ये हम जब खाते हैं तो हम उसे नॉर्मल रोटी की तरह, जो ब्रेड हम खाते हैं वैसे ब्रेड की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आज हम इसे खाएंगे तो हम उस बात को तसव्वुर करेंगे कि यीशु ने हमारी खातिर अपनी जान दी। उसने कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसे ब्रोकन ब्रेड भी कहते हैं, यानी कि टूटी हुई रोटी। और फिर बाइबल मुकद्दस में इसे शायरबानी भी कहा जाता है, यानी कि शाम का खाना। और चौथी बात इसे द टेबल ऑफ द लॉर्ड भी कहते हैं कि खुदावंद की मेज। और ये बड़ी खुशकिस्मती है, ये बात सुनते ही कलीसिया, ईमानदार लोग, खुदावंद के प्यारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े अजाज की बात है। और ये अजाज कोई हमारे कारण नहीं, बल्कि ये अजाज उसकी दावत पर, उस ही के बुलावे पर और उस ही की जो है वो फजल से होता है कि वही हमें अपने खाने में शरीक करता है। वरना अगर हम अपने कामों या अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम तो खुदा के पास जाने के भी लायक नहीं, लेकिन ये उसका भारी फजल है कि वो हम पर एक बड़ा करम करता है,
कि हम उसकी मेज में से खाते हैं। आमीन। और इसे खुदावंद की मेज कहते हैं। एक शख्स का खाना किसी प्रेसिडेंट के साथ था, वजीर आजम के साथ, और जब वो उसके साथ खाना खाने गया, उसे शाम को प्रेसिडेंट के साथ खाना खाना था, उसे नए कपड़े पहने, अच्छी खुशबू ली, बाजार में से अपनी बॉडी को लगाई, नए शूज लिए, नए सॉक्स लिए उसने, वो अपने आप को पूरा मेंटेन तैयार करके गया कि कहीं प्रेसिडेंट के पास जाना है ताकि मैं उसमें कम तर नजर ना आऊं, कहीं मेरे कपड़े की वजह से वो मुझे धुतकार ना दे। वो एक प्रेसिडेंट की मेज पे जाने के लिए अपने आप को वेल ड्रेस करता है, वो अपने आप को मेंटेन करता है। लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा, जिसका नाम यीशु मसीह है, हम उसकी मेज पर आए हैं। और वो ऐसा बादशाह नहीं, वो आपके कपड़ों पर निगाह नहीं करेगा कि कौन आज बहुत खूबसूरत बनकर आया है, क्योंकि इसका तल्लक जो है शायरबानी का आपके ड्रेसिंग के साथ, आपके गुड लुकिंग दिखने के साथ नहीं, बल्कि इसका तल्लक आपको और खुदा के साथ एक रूहानी तल्लक है। हालेलुया। और इसका तल्लक जो है, इस शायरबानी का जो आपके साथ जो तल्लक है, वो कपड़े अच्छे दिखने से नहीं, बल्कि खुदावन का कलाम यूं फरमाता है योएल नबी की मार्फत, योएल कहता है कि अपने कपड़ों को चाक ना करो, बल्कि अपने दिलों को चाक करो। शायरबानी में आए हुए हर शख्स के लिए ये एक पैगाम, गुड न्यूज है कि वो अपनी जिंदगी पर गौर करे और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि अगर हम अपने कामों की वसीला से अगर खुदा की मेज पर जाते तो कभी भी हम खुदा की मेज से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। ये उसी का फजल है कि वो इब्राहिम के लिए भी पहले खुद ही भला मुहैया करता है और फिर आज हमारी रिहाई और हमें छुड़ाने के लिए भी वो खुद ही भला मुहैया करता है। और वो कहता है यूहन्ना की मार्फत कि देखो खुदावन का भला जो दुनिया जहां के गुनाह उठा ले जाता है। हालेलुया। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इस भरे के पास है, वो यीशु अल मसीह है। उसने भी वैसा ही किया, उसने भी अपना बदन दे दिया, उसने भी अपना खून दे दिया और हमें उसने आजाद करवाने के लिए अपना खून और बदन देकर फिर वो भी जैसे इब्राहिम लूत को बचाने के लिए चला गया, इसी तरह यीशु मसीह मुझे और आपको गुनाहों से बचाने के लिए सलीब पर चला गया ताकि वो बेऐब बड़ा कुर्बान हो और उसकी कुर्बानी से हम आजाद हों और उसके साथ फिर हम पाक इशा को मना सके। आमीन। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, इसको फिर होली कम्युनियन, जिसका मतलब है पाक शराकत, यानी कि खुदावंद के साथ मुकद्दसों की रफाकत। और बाइबल मुकद्दस में आखिरी नाम जो इसे दिया गया है वो पहला कुरिन्थियों के अंदर हम देखते हैं जो इसे आखिरी नाम दिया गया है, और वो ईमाल दूसरे बाब के 41 और 42 आयत मुकद्दसा में रोटी तोड़ना है। ये इसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि